is the senior faculty of our department and also the director of Center of Postgraduate Legal Studies. Ma'am always set the tone with her word of wisdom for all national webinars, which is organized by your department. So now, ma'am, we are eagerly waiting to listen. Thank you so much, Rashida. Very warm morning to one and all. And many congratulations to all of you on this 12th National Voters Day of India, which is one of the world's largest democracy. And election is always a festival for a democratic nation. I welcome the chief guest for today's webinar, Professor A.K. Awasthi sir, guest of honor, Professor Shashikant Pandey sir, and Professor Rana Pratap Singh ji, the Dean Academic Affairs, who is presiding over this session. My colleagues, Professor Preeti Mishra, Dean and Head, School of Legal Studies, and I see that under her able guidance, this webinar is being organized. My colleagues from the department and the members organizing committee, Professor Shashi Kumar ji, Dr. Rashida, Dr. Ajay, Dr. Vijay Bhaskar, and all the participants from the different parts of the country. As the director told that there are many registrations for this webinar, which is of course of very, very importance. Basically, all these students, participants who are above 18 years of age, they are the voters, and voters are the true masters of a sovereign nation. They are the true masters. And the theme for this webinar for today's discussion, that is voters' participation in good governance, issues and challenges. Now, as already told, that this day is just to spread the awareness about the importance of voting among the people and to make them aware about the electoral process, so that the voters can take part in the electoral process, because until they take the part in the election, then democracy cannot survive. So for the survival of democracy, this participation of the voters in this electoral process, that is very important. And because of this, or in considering all these things, you see the government of India in 2011 decided to celebrate this 25th January as a National Voters Day. 25th January has its own importance because that was the day in 1950 when the Election Commission of India was established. पहला दिन था वो हमारे गणतंत्र होने से पहले. हम गणतंत्र हुए 26 जनवरी 1950 को, और 25 जनवरी 1950 को भारत का जो निर्वाचन आयोग था उसकी स्थापना हुई है. उसका स्थापना दिवस है जो 2011 से उस समय की राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल और उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई. तो ये पहली बार 2011 में मनाया गया ताकि जो हमारे यंग वोटर्स हैं, युवा मतदाता हैं, वो हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में, चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सके और उनको एक तरीके से प्रोत्साहित किया जा सके, उनको एनकरेज किया जा सके कि वो इस डेमोक्रेसी को सरवाइव करने के लिए अपना पार्टिसिपेशन दें. एंड दैट्स व्हाई दे आर द ट्रू मास्टर्स ऑफ ए सॉवरेन, दे आर द ट्रू मास्टर्स ऑफ द डेमोक्रेसी. इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि ये वोट देने के अधिकार जो है हमारा, ये भारत के लोकतंत्र को मनाने का भी एक दिन है, क्योंकि चुनाव आयोग का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ यही कि मतदाता जो कि बेसिकली कहा जाए कि एलिजिबल वोटर्स हैं, उनके इलेक्शन के जो लिस्ट है उसमें ज्यादा से ज्यादा उनका एनरोलमेंट किया जाए, उनके नामांकन में वृद्धि की जाए. आज भी सुबह जब मैं अखबार देख रही थी तो उसमें दिख रहा है जागो मतदाता जागो, कि उसमें डेट दी हुई है कि आप जितने भी 18 साल के हो चुके हैं उनको अपना वोटर अपना लिस्ट जो है उसमें नाम एंट्री कराएं, अपना वोट कार्ड बनाएं और इस लोकतंत्र के लिए एलिजिबल हो जाएं उस राज्य की सरकार को और उस देश की सरकार को चुनने के लिए. जैसा कि कहा गया अभी 5 राज्यों में वोट होने हैं, इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है. तो आज का जो दिन है वो सिर्फ इसी को जागरूक करने के लिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, उन्हें अपने नेता के चयन करने का अधिकार है. तो जो देश
के नेतृत्व करने के लिए और जो राज्य को अपना अच्छा एक नेता चुन सकता है, उनको पूरा अधिकार है कि वो उनको चुने और वो उस देश का और उस राज्य का नेतृत्व करने में सक्षम हो, उनका चुनाव करें। तो आप लोगों की जो समस्याओं का समाधान कर सके ऐसे नेता को चुने, जो परिवर्तन ला सके ऐसे नेता को चुने। भारत के संविधान के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो मतदाता जो है वही इस अनूठे लोकतंत्र की बुनियाद है। दे आर द फाउंडेशन ऑफ दिस डेमोक्रेसी, जहां मतदाता सरकार को चुनते हैं। सो वोटर्स, व्हेन आई स्टार्टेड माय टीचिंग करियर एट दैट टाइम, and there was one सेमिनार, एक सेमिनार हो रहा था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे, और मेरा पेपर था कि जो वोटर्स हैं दे आर द मास्टर्स ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन। और उसके बाद ही फिर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया अनुकूल चंद प्रधान का, वाज 1997 में आया, कुछ साल बाद। तो मुझे लगा जो चीजें मैं कह चुकी थी वही सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस जजमेंट में कही। तो इलेक्शंस आर सेड टू बी द फेस्टिवल्स ऑफ डेमोक्रेसी, where voters are of great importance. The Election Commission of India through different themes for this day every year, क्योंकि ये 2011 से चल रहा है, हर साल इनकी अपनी नई नई थीम्स होती हैं। कभी होता है कि जो वोटर्स हैं वो पीछे न छूटे, एक अच्छा एक्सेसिबल इलेक्शन हो जाए, या जो यंग हमारे वोटर्स हैं, फ्यूचर वोटर्स हैं, उनको कैसे एम्पावर किया जाए, इंक्लूसिवनेस को कैसे लाया जाए। तो अलग अलग थीम पर दे आर वर्किंग। And for this year, they have the theme for making elections inclusive, accessible and participative. कि चुनावों में जो है मतदाताओं को किस तरीके से उनका समावेश किया जाए, चुनाव किस तरीके से सुगमता के साथ किए जाए, और हर किसी को कैसे इसमें पार्टिसिपेटिव रोल दिया जाए। बिकॉज वी आर ए कंट्री वेयर वी हैव अडॉप्टेड फॉर द पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। तो ये पार्टिसिपेटिव के मतलब है दो लोग होना जरूरी है, और उस दो लोग में जो एक है वो है मतदाता। तो जब तक मतदाता पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मुझे लगता है तब तक इन चुनावों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और जहां हम परसेंटेज देखते हैं, क्योंकि अभी मुझे लगता है प्रोफेसर शशिकांत जी इस पर जरूर चर्चा करेंगे कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो किस तरीके से डिसाइसिव फैक्टर होता है किसी भी सरकार को चुनने के लिए। तो पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए है, ताकि एक जो मतदाता है वो जिम्मेदार व्यक्ति को अपना वोट दे सके और देश के विकास में भाग ले सके। क्योंकि द बेसिक पर्पस इज दैट कि हाउ वी कैन ब्रिंग द गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस लाने के लिए वी नीड ए गुड गवर्नमेंट, एंड वी आर द पर्सन्स हु कैन इलेक्ट अवर गुड गवर्नमेंट which can do good work, जो अच्छे काम कर सकती है, जो देश का विकास ला सकती है। अगर हम बात करें पूरे विश्व में, तो आज की डेट में भी लगभग 30-35 ऐसे देश हैं, बल्कि और ज्यादा ही होंगे मुझे लगता है, जहां पर ये जो अनिवार्य मतदान कानून है वो वहां पर एग्जिस्ट करता है। इंडिया में नहीं है। अगर देखें हम ऑस्ट्रिया में, अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में, कुछ और भी हैं, चिली, कोस्टारिका, साइप्रस, अभी छोटे छोटे कुछ ऐसे गणराज्य हैं जहां पर मतदान देना अनिवार्य है, वोट करना बहुत आवश्यक है। इनमें से कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पर कि मतदान को नागरिक का अधिकार माना गया है। इन आवर कंट्री ऑल्सो इट्स अ सिविल राइट, इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट, इट्स अ सिविल राइट। तो कुछ ऐसे देश भी हैं कि जहां पर मतदान को कर्तव्यों के साथ जोड़ दिया गया है, दैट इज देयर नेशनल ड्यूटी। और कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं, खास करके ऑस्ट्रेलिया को, ब्राजील को अगर आप देखें, तो जहां पर अगर मतदान नहीं किया गया है तो वहां पर पेनल्टी, सजा देने का भी प्रावधान है। तो हम अपने देश को एक डेमोक्रेटिक नेशन कहते हैं, और डेमोक्रेसी में वोटर्स जो हैं मास्टर हैं, वो सॉवरेन हैं, वो हमारी सरकार को चुनते हैं। तो हमारे यहाँ भी ये कर्तव्य के साथ साथ, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी हो जाए, और अगर हम उस कर्तव्य को पूरा ना करें तो वो एनफोर्सेबल कर्तव्य भी हो जाए, तो मुझे लगता है कि अनिवार्य मतदान ये अपने आप में एक अच्छे गुड गवर्नेंस को लेकर आएगा। और जो हम लोग का कर्तव्य है, अगर हम उसको पूरा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ सजा का अगर प्रावधान हो, तो बहुत अच्छी तरीके से जो परसेंटेज है, जो पार्टिसिपेशन है मतदाताओं का, वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है।